Okay, students, in question number 26, a particle having a charge of 2 into 10 raised to minus 4 coulomb is placed directly below and at a separation of 10 centimeter from the bob of a simple pendulum at rest. So the mass of the bob is 100 grams. What charge should the bob be given so that the string become loose? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या दिया है इन द क्वेश्चन नंबर 26, there is a pendulum which is at rest. Okay, and what we have given, a particle of 2 into 10 raised to minus 4 coulomb charge is placed directly below. तो यहाँ पर एक पार्टिकल है of charge 2 into 10 raised per minus 4 coulomb. Okay, and the distance between them, between the bob and the charge is 10 centimeter. And the mass of the bob is 100 gram. और इसका जो mass है that is 100 grams. And what charge should the bob be given so that the string becomes loose? तो यहाँ पर string become loose का मतलब है the tension in the string should be 0. तो वो कब होगा जब देख लेते हैं. इक्विलिब्रियम हम लगाएंगे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे एफबीडी बनाते हैं ऑफ अवर बॉब, सो दैट इज़ योर बॉब, और इस पर फोर्सेस दिखा देते हैं. देयर विल बी mg gravitational force, and since we have to find the charge on the bob, if you want to loosen the string, जो टेंशन है हमें उसको ज़ीरो करना है, then there must be a force against the gravitational force, so it has to be a positively charged bob. Let us say the charge on this is small q, so there will be a force, electric force in the upward direction, and this electric force will balance the gravitational force. तो सबसे पहले we can find out like the magnitude of this electrostatic force. So it will be k q into 2 into 10 raised to power minus 4 divided by 0.1 square. Okay, and this thing will be equals to your mg. तो यहाँ पे एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 9 into 10 raised to power 9 q 2 into 10 raised to power minus 4 divided by 10 raised to power minus 2. मास इज़ 100 ग्राम, दैट इज़ 0.1 kg, एंड जी को हम 9.8 ले लेते हैं यहाँ पर. सो Q विल बी 9.8 डिवाइडेड बाय 18 into 10 raised to power minus 1 minus 2 plus 4 minus 9. Okay, so इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं. 9.8 डिवाइडेड बाय 18, सो इट कम्स आउट टू बी 0.54. 0.54 into 10 raised to power 9, 11, 12 minus 8, that is कूलम. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं 5.4 into 10 raised to power minus 7. Let me check. Yes, यहाँ पे 9 हो जाएगा, not 7, 9. So this is the answer of question number 26. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है हमसे. In question number 27, two particles A and B having charge Q and 2Q respectively are placed on the smooth table with a separation D. A third charge C is to be clamped on the table in such a way that the particle A and B remain at rest on the table under the electrical force. Force is what should be the charge on C and where should it be clamped. तो यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस गिवन हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ. दिस इज़ योर चार्ज Q and there is another charge 2Q.
एंड द थर्ड चार्ज सी हैज़ टू बी प्लेस समवेयर, कहीं पे हमें उसको क्लैम्प करना है सच दैट दीज टू चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब इनके ऊपर जो नेट फोर्स लगे दैट विल बी ज़ीरो. तो नेट फोर्स ऑन 2q एज वेल एज ऑन q हैज़ टू बी ज़ीरो. तो ज़रा चेक करते हैं. सपोज इफ़ यू टेक द थर्ड चार्ज टू बी पॉजिटिव, अगर हमने उसको पॉजिटिव लिया और उसको हमने समवेयर इन बिटवीन रखा, तो उस केस में क्या होगा, देयर विल बी इफ़ वी कंसिडर द फोर्सेज ऑन दिस चार्ज, तो जो बीच में हमने चार्ज रखा है सपोज वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स इन द राइट डायरेक्शन आ रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज तो हो नहीं सकता. और अगर मैं उसको रखता हूँ नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव रखता हूँ, नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी और इसके कारण रिपल्सिव फोर्स होगी. सो वी कैन हैव अ नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज टू बी ज़ीरो, हो सकता है. अब इस पे चेक करें, अगर यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स होगी और इसके कारण रिपल्सिव फोर्स होगी, तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है. सो लेट अस अज्यूम कि वी हैव प्लेस्ड द चार्ज C, ये आपका A था, आपको बोला A है, ये आपका B है, एंड समवेयर सब हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया. ओके, एंड लेट अस से द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज Q, या मैं कह सकता हूँ माइनस Q हमने प्लेस कर दिया. इट हैज़ टू बी अ नेगेटिव चार्ज, ओनली देन द फोर्स ऑन दीज टू एक्सट्रीम चार्जेस विल बी ज़ीरो. तो यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज C has to be negatively charged to have charges at A and B in equilibrium. Okay, so अगर आप देखें इस चार्ज के ऊपर इसके कारण रिपल्सिव फोर्स है इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज के ऊपर इसके कारण रिपल्सिव फोर्स है इस डायरेक्शन में, और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज कूलम्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या होगा, वो एक्शन रिएक्शन की तरह काम करेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो इसका मतलब अब इस चार्ज के ऊपर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस चार्ज, और इस चार्ज पर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है. तो ये जो रिपल्सिव फोर्सेस लग रही हैं उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, और इसके कारण जो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है और इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ लग रही है और अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ लग रही है उनका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा. ओनली इन दैट केस दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम और दिस विल बी इक्विलिब्रियम. एक बार हम इनका एफ बना देते हैं, एफ ऑफ स्मॉल q. सो यहाँ पर से द फोर्स of repulsion is F, and so this is your F1, and the FBD of 2q and this is F, and say this is F2. तो for this to be in equilibrium, ये तो हमारा क्लैम्ड है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, दिस इज़ योर क्लैम्ड. इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये तो हमने एक्सटर्नली इसको फिक्स किया हुआ है. इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए F1 हैज़ टू बी इक्वल्स टू F एंड योर F2 हैज़ टू बी इक्वल्स टू F. ओके, और फिर वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस. और यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्टेंसेस ले लेता हूँ. हमें गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड 2Q इज़ D, और ये सपोज मैंने मान लिया x, सो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा D माइनस. तो ये डिस्टेंसेस हमने ले लिए. अब हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं. सो योर F शुड बी इक्वल्स टू F1, और F आपका क्या है,
k q 2q by l square, sorry d square, we have taken d, the distance between 2q and 2q, और F1 जो है, your F1 is the force of attraction due to this charge, so it will be k small q into capital Q divided by x square. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें क्या गिवन, और एक तो इक्वेशन बन गई है हमारे पास, और दूसरा है आपका f इज, और यहाँ पर ही लिख देता हूँ F2 and it will be k, F2 will be the force of attraction between Q and 2Q, तो उसको लिख सकते हैं k your 2Q into capital Q divided by d minus x square. Okay, so in this question we have to find where we have to place the charge and also what is the magnitude of the charge. So if we use these two, if we use this equation, we can find out the value of x, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल Q और स्मॉल q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो we'll get ओके, कैपिटल Q से स्मॉल q कैंसिल, k से k कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा 1/x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन d माइनस एक्स. ठीक है, और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो वी विल गेट योर √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू d. ओके, तो यहाँ से आपका जो x होगा दैट विल बी d अपॉन √2 प्लस 1. नाउ यू कैन रैशनलाइज दिस थिंग, और ये आपका हो जाएगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो ये आपका हो जाएगा √2 minus 1. So the charge capital Q has to be placed at a distance of √2 minus 1 into d from the charge small q. तो x हमको मिल चुका है, so मैं लिख देता हूँ Q has to be, या माइनस Q has to be placed at a distance of d √2 minus 1 from Q. ओके, और यहाँ पर वो कह सकते हैं that this minus Q is in between Q and 2Q. Now we have found x. Now if we use the other equation, तो वहाँ से हम कैपिटल Q निकाल सकते हैं. So k q 2q by d square is equals to k q capital Q. x हमको पता है, that is your d square, x square will be this. So यहाँ पर आपका q से q कैंसिल हो गया है, k से k कैंसिल हो गया है, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, so it will get 2. उसका इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो it will be 2 plus 1 minus 2 √2, and this is your q, or it comes out to be 6 minus 4 √2. So this is the magnitude of the charge, but we know that it has to be a negative charge, so this is the charge, clamped at C. Okay, so this is the answer of question number 27. Okay, so let's see the next question, question number 28. Two identical charged particles are fastened to the two ends of the spring constant 100 Newton per meter, and the natural length is 100 centimeter. The system rests on a smooth horizontal table. If the charges on each particle is 2 into 10 raised to the power minus 8 centimeter, find the extension in the length of the spring. Assume that the extension is small as compared to the natural length. Justify this assumption after you solve the problem.
तो सबसे पहले यहाँ पर आपके एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के दो एंड्स पर आपने दो आइडेंटिकल चार्जेस को फास्टन कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन डायग्राम बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, there are say two charges which are fastened to a spring. Okay, K आपको गिवन है, the spring constant is 10 Newton per meter and the charge, let us say this is Q, this is Q. अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने लिया है, यहाँ पे एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो ये जो चार्जेस होंगे पॉजिटिव ही होंगे। एंड द नेचुरल लेंथ, अगर इनिशियल लेंथ की बात करें, दैट वाज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज मैंने इनको भी पकड़ कर रखा था एंड देन आई रिलीज देम एंड द सिस्टम रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। So this is your table and it is given that it is smooth. And Q is also given, that is 2 into 10 raised to the minus 8 coulomb. Okay, दिया हुआ ऑलरेडी, K पॉजिटिव है। Now we have to find the extension in the length. तो अगर हमने इसको स्मूथ टेबल पर रखा हुआ है तो क्या होगा कि इनके बीच में रिपल्शन होगी। अगर हम इसको देखें, इसकी रिपल्शन होगी तो ये थोड़ा हमारा एलोंगेट करेगा स्प्रिंग, और जब स्प्रिंग एलोंगेट करेगा तो स्प्रिंग फोर्स विल स्टार्ट टू एक्ट। तो इस चार्ज पर लेफ्ट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगने लगेगा, इस वाले में राइट डायरेक्शन में लगने लगेगा। सो व्हेन द स्प्रिंग फोर्स बैलेंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस केस में आपका सिस्टम रेस्ट पर आ जाएगा। तो आपका जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, मैं इसको बना देता हूँ। ओके, और ये हो जाता है आपका 10 सेंटीमीटर प्लस से सम एक्स, इसमें एलोंगेशन हो गई है। और अगर आप एफबीडी बनाओगे ऑफ एनी चार्ज, से मैं लेफ्ट वाले चार्ज का बना रहा हूँ एफबीडी, so there will be a repulsive electric force and there will be a spring force. Okay, that will be equals to K times X. और यहाँ पे we have given कि जो X है that is very very less than 10 सेंटीमीटर, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब इन दो फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। So we had Fe is equals to Fs, so it will be 9 into 10 raised per 9 and the charge is 2 into 10 raised per minus 8 square divided by the distance. अब यहाँ पे जो x है that is very small, so we can take the distance approximately equals to the natural length of the spring. तो वो नेचुरल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 ये ले सकते हैं। एंड द स्प्रिंग फोर्स विल बी स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स द एलोंगेशन हमने x रखी है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 into 4 it will be 36 into 10 raised to power 9 minus 16 plus 2 minus 2, so it comes out to be minus 7 3.6 into 10 raised to power minus 6 मीटर। ओके, सो जो एलोंगेशन है इटसेल्फ वो आपका जो नेचुरल लेंथ है उससे बहुत ही छोटी है, सो दैट्स वाई वी कैन अज्यूम कि जो एलोंगेशन है आप उसको बहुत छोटा ले सकते हो। सो दैट्स वाई दे हैव गिवन दिस अजम्पशन। अदरवाइज अगर हम इस एलोंगेशन को कुछ सब्सटेंशियल मानते तो यहाँ पर भी आपका जो होता है x प्लस 0.1 आता, सो देयर विल बी अ क्यूबिक एक्सप्रेशन, फिर उसको थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस अजम्पशन। ओके,
तो आप कह सकते हो जो elongation है स्मॉल, so we have given that assumption. Okay, so this is the answer of question number 28. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है. In question number 29, a particle A having a charge of 2 into 10 raised to minus 6 coulomb is held fixed on a horizontal table. ठीक है, एक आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और यहाँ पर आपको गिवन है कि एक चार्ज फिक्स्ड है और ये है 2 into 10 raised to minus 6 coulomb. A second charged particle of mass 80 grams stays in equilibrium on the table at a distance of 10 centimeter. अब इस चार्ज पार्टिकल से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर there is another charged particle which can move. Okay, so this one is fixed, it can move. तो यहाँ लिख देता हूँ it can move और not fixed. और इसका जो मास है, इस चार्ज का मास is given, that is 80 grams and it stays in equilibrium on the table at the distance of 10. ठीक है, the coefficient of friction between the table and this second charge is 0.2. तो हमको coefficient of friction given है यहाँ पर 0.2. Find the range within which the charge of this second particle may lie. तो आपको बताना है कि इसमें कितना चार्ज है, कितना चार्ज हम रख सकते हैं. ओके, टू कीप दिस चार्ज्ड पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम. तो अब हमें इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है. सबसे पहले मैं निकाल लिखता हूँ जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी कितनी वो कितनी वैल्यू. एफ मैक्स विल बी म्यू, लिमिटिंग केस की बात करें तो म्यू एम जी. म्यू आपको है 0.2 गिवन और m is 0.08 and g is 9.8. ओके, सो ये आपका हो जाएगा 0.1568. ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, सपोज मैंने इसका चार्ज थोड़ा सा, मैं इसका चार्ज इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैंने इसका चार्ज बढ़ाया तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी और फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. मैं चार्ज इसको और बढ़ा दूंगा, चार्ज और बढ़ाऊंगा तो ये आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ती चली जाएगी. बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स. तो इसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते चले जाओगे और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा. कब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा? व्हेन द फोर्स ऑन दिस, एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस एक्सीड्स दिस वैल्यू. तो मैं लिख देता हूँ when the magnitude of electrostatic force exceeds 0.1568 Newton, then your charge will not be in equilibrium. ओके, तो अगर ये न्यूट्रल पार्टिकल है उस केस में भी इक्विलिब्रियम में रहेगा. अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर मैं लिख देता हूँ इफ़ इट हैज़ अ चार्ज Q, ठीक है, चार्ज Q है उसके ऊपर, तो मैं एफ ई को इसके बराबर कर देता हूँ 0.1568 और उसकी वैल्यू निकालते हैं. मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है चार्ज की? सो इट विल बी 9 into 10 raised to 9 into Q
into 2 into 10 raised to power minus 6 q1 q2 divided by the distance between them, that is 10 centimeter, तो 0.1 square 0.1568. ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो q will be 0.1568 divided by 18 into 10 raised to power 6 minus 9 minus 2. Okay, so it comes out to be 1.1568 divided by 18, so 8.7, ये हो जाएगा 8.7 into 10 raised to power minus 3 on n minus 5, which comes out to be 8.7 into 10 raised to power minus 8. So that is the charge. So we have found out the maximum value of the charge. तो अगर आपका चार्ज है माइनस ऑफ दिस, उस केस में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, if the charge is minus 8.7 into 10 raised to minus 8, in that case there will be an attractive force and the frictional force will be in this direction, और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन होगा, ये आपका फ्रिक्शन. और अगर ये है 8.7 into 10 raised to minus 8, उस केस में there will be a repulsive force and the frictional force will be in the opposite direction, F max. And if we have a charge in between these two values, in that case it will still remain in equilibrium, because your electrostatic force magnitude will be less than the maximum static frictional force. So charge q has a range from plus minus, so 8.7 into 10 raised to minus 8 coulomb. So this is the answer of question number 29. So let us see the next question. Okay, a particle A having a charge of 2 into 10 raised to minus 6 coulomb and a mass of 100 gram is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30. तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ इन क्वेश्चन नंबर 30. So there is an inclined plane of inclination 30 degree. A particle A and mass इतना is placed at the bottom. तो यहाँ पर आपका एक पार्टिकल आपने रख दिया है, और इस पार्टिकल के बारे में दिया है 2 into 10 raised to minus 6 कूलम इस पर चार्ज है, और इसका जो मास है that is 100 gram. Where should another particle be having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium? Okay, तो मान लेते हैं कि जो आइडेंटिकल पार्टिकल है हमने उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है, वेयर वी कैन से एट अ डिस्टेंस से L, तो यहाँ से और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने L बोल दिया, तो ये L डिस्टेंस हमें निकालना है इसमें. सो वेयर वी हैव टू प्लेस इट. अब आप देखें, अगर इस पार्टिकल की बात करें ऑन द इंक्लाइंड, मैं यहाँ पर इसका FBD बना देता हूँ. FBD इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ. FBD ऑफ B सो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन दिस इज योर mg cos 30 degree, and along the inclined plane it is
mg sine 30 degree, there will be a normal reaction. And if we want to keep this in equilibrium, so this force must be balanced by the force in this direction. So it means it has to be of the same nature. If it is positive, it has to be positive. So repulsive force लगनी चाहिए. तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि दिस इज द फोर्स ओके. और ये हमारा स्मूथ है, यहाँ पे मेंशन करता हूँ स्मूथ. और कोई फोर्स नहीं लग रहा है. नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस दिस कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बैलेंस द mg sin 30 डिग्री. तो उसको लिख देते हैं Fe is equals to mg sin 30 degree for equilibrium, and it will be 9 into 10 raised to power 9 into ओके ये आइडेंटिकल चार्ज है तो उसका चार्ज उतना ही लेंगे 2 इंटू 10 रेस्ट पर -6 कूलम. मास भी सेम है इसका, मैं लिख देता हूँ कितना है इसका 100 ग्राम्स. सो 2 इंटू 10 रेस्ट पर -6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L square is equals to m is your 100 grams, that is 0.1 into 9.8. Sine 30 is 1 by 2. So L square will be 9 into 2 into 4 divided by 9.8 into 10 raised to power 9 minus 12 plus 1. Okay, so it comes out to be 9 into 8 divided by 9.8. So it is 7.347 into 10 raised to power -2. So it comes out to be square root of that will come out to be 0.27 meter, or you can say 27 centimeter. So your charge B has to be placed at a distance of 27 centimeter from A. So this is your question number 30. Okay friends, तो इस वीडियो में हम ये 30 तक ही करते हैं. बाकी क्वेश्चन विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.